A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Banigre. On behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 9 and we are reading chapter 10, that is gravitation. Okay, so before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so without wasting any further time, let's see what we're going to discuss today. Today we'll be taking our discussions of centripetal force a bit further. Along with that, we'll be reading free fall in motion and thrust and pressure. Okay, let's start. So this is the first thing is centripetal force. Now, what is centripetal force? Centripetal force. When a body undergoes circular motion, it experiences a force that acts towards the center of the circle. This center seeking force is called a centripetal force. So what is it exactly? So when a body undergoes circular motion, जब भी कोई होता है बॉडी जो होता है जब सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तब वो क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, तो वही फोर्स जो होता है दैट एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर, और वो फोर्स होता है सेंटर के टूवर्ड्स एक्ट करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स. सपोज तुम एक बॉल फेंक रहे हो, तो बॉल क्या हुआ, बॉल तुम एक गति से बॉल फेंक रहे हो एक स्पीड से, और वही बॉल जो है एक पर्टिकुलर फोर्स सेंटर में भी अप्लाई कर रहा है एक फोर्स, तो उसी को हम सेंट्रिपिटल फोर्स बोलेंगे. When an object travels around a circular path with a constant speed, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर स्पीड में एक कांस्टेंट स्पीड में अगर घूम रहा है, इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेटिंग सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, तो तभी क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स सेंटर में हमें एक्सपीरियंस होगा. Now what is the formula of centripetal force? It is F is equal to mv square by r. So m is your mass, r v is your actually क्या जितनी velocity में आप जा रहे हो उसका square, और r is your radius. Okay, so centripetal force का formula है F is equal to mv square by r. ठीक है, और v का हम इवन v को ओमेगा आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर टू द होल स्क्वायर बाय आर, और f इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर. Okay, so centripetal force का formula है mv square by r, where v is the velocity. Fine. Next. Now free fall and motion. Now what is free fall and motion? So when an object is under free fall, acceleration due to gravity is constant and g is equal to 9.8 per meter square. तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री फॉल का क्या मतलब है, अब ऊपर पैराशूट से जब भी आप जंप करते हो, ऐसे जैसे पैराग्लाइडिंग एंड ऑल, जो भी बेसिकली आप ऊपर से जब जंप करते हो तब क्या होता है, एक फ्री फॉल एक्सपीरियंस होता है, और वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है दैट इज स्मॉल जी, आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. ठीक है, इतना होता है. नाउ वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास. अब जो होता है फ्री फॉल में, जो भी ऊपर से गिरा, डजेंट मैटर कि वो कितना मास का है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना छोटा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इट डज नॉट मैटर एनीथिंग, वो सीधा जो होता है उतना ही ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए साइज जो भी हो वो सेम रहेगा, दैट इज 9.8 पर मीटर स्क्वायर. ओके, so value of g does not depend on mass, that is any object big or small, the same acceleration due to gravity under the free fall, तो सबका जो होगा सेम ही acceleration रहेगा irrespective of their property. All three equations of motion are valid for freely falling object. अब जो हमारी न्यूटन थ्री लॉज हैं, जो तीन लॉज हैं हमारे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वी प्लस ए टी इज इक्वल टू वी प्लस यू. हाँ, I forgot that. Okay, so what are the three formulas? The first one is S is equal to ut plus half at square. Next is v plus, और एक तो क्या है बताओ, थ्री लॉज जो है, बताओ कौन बताएगा मुझे. न्यूटन्स थ्री लॉ, राइट. न्यूटन्स का थ्री लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट है दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और एक तो हम लोग पढ़े, और एक तो क्या है, वी प्लस 2as वाला, जो वी स्क्वायर माइनस
वी स्क्वायर तीन है, क्या क्या है, तीन फॉर्मूलाज है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, आई वॉज, मैं रॉन्ग देख रही थी। सो दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, और एक तो है दैट इज एस, और एक तो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैं वी प्लस यू कर देती थी, ठीक है, इज इक्वल टू। सो ये तीनों फॉर्मूलाज जो है फ्री फॉल पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। ओके, द साइन ऑफ कन्वेंशन टुवर्ड्स अर्थ जी इज पॉजिटिव अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर जो होता है कोई भी टुवर्ड्स अर्थ गिर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसका जो होगा पॉजिटिव साइन आ जाएगी, जी जो होगी दैट इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर का कोई अवे जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है अर्थ से, अगर ऊपर हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं, मतलब मैं बॉल अगर ऊपर उछाल रही हूँ, तो मेरा ग्रेविटी जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। Okay. Now the next thing is thrust and pressure. Now what is thrust and pressure? Force acting on an object perpendicular to the surface is called as thrust. तो exactly thrust क्या होता है? आप जब भी कोई force apply कर रहे हो perpendicular to the surface, suppose हम एक कांटा लगा रहे हैं, तो हम कांटा को क्या करते हैं, मार्तुल से मारते हैं, that is thrust। तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के perpendicular से अगर हम force apply करते हैं, तो उसको हम थर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ थर्स्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो थर्स्ट होता है वो कितना एरिया में है, उसके कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है थर्स्ट, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो भी होगा हम उसको थर्स्ट बोलते हैं। नाउ द प्रेशर इज थर्स्ट पर यूनिट एरिया। नाउ हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, थर्स्ट पर यूनिट एरिया, कितना थर्स्ट हम परपेंडिकुलर, कितना ज़्यादा फोर्स ऐड करें एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। थर्स्ट क्या है, जो फोर्स हम लोग परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मार रहे हैं वो है थर्स्ट, और प्रेशर जो है दैट इज कितना थर्स्ट हम दे रहे हैं, यानी कितना परपेंडिकुलर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक एरिया में, उसको प्रेशर बोलते हैं। यूनिट क्या है, इसका यूनिट है पास्कल, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल पी और स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। नाउ force acting on a smaller area applies more pressure than the same force acting on large area। तो क्या होता है, अगर आप एक छोटे से एरिया में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आपको बहुत प्रेशर देना पड़ेगा वो छोटे से एरिया में, लेकिन अगर आप एक बड़े एरिया में अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, देन यू विल बी नीडिंग लेस प्रेशर, ठीक है। यानी छोटे एरिया में ज़्यादा प्रेशर लगता है और बड़े एरिया में कम प्रेशर लगता है, ओके। नेक्स्ट, नाउ प्रेशर इन फ्लूइड्स। नाउ व्हाट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में भी कोई प्रेशर होगा, लेट्स सी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंटेनर, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंटेनर में फ्लूइड रखे हो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में, उस कंटेनर में अगर हमने फ्लूइड रखा है तो क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो हर एक पॉइंट ऑफ द कंटेनर में सेम प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो प्रेशर exerted by a fluid in a container is transmitted undiminished in all directions of the walls of the container। तो everywhere जो होता है pressure of the liquid everywhere in the container सेम रहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया, वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब टब में अगर हम मग डाल देते हैं तो मग फ्लोट करता है, डूबता क्यों नहीं। अगर हमारी जो शिप्स होती है वो फ्लोट करती हैं, इतनी भारी होती हैं, फिर भी आपका जो बोट होता है वो फ्लोट करता है, ठीक है। बॉल होता है फ्लोट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें फ्लोट करती हैं। अब शिप इतना भारी होकर कैसे पानी में फ्लोट करता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स, फ्लूइड जो होता है एक अपवर्ड फोर्स देता है, उसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स, ठीक है, या अप थ्रस्ट। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को पानी में रखोगे, तो फ्लूइड जो होता है, पानी जो होगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंसी डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब कितना मैग्नीट्यूड में वो अप थ्रस्ट देगा या प्रेशर देगा, वो डिपेंड करता है कि वो कितना डेंसिटी है, लिक्विड लिक्विड कितना भारी है। अगर डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, देन द फ्लूइड देन इट विल फ्लोट। फ्लोट किस कंडीशन में करेगा, अगर डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कम है फ्लूइड से, तभी जाके वो फ्लोट करेगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाता है फ्लूइड से, तब वो डूब जाएगा। According to Archimedes' principle, when a body is immersed fully or partially in a fluid, it it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये बोला कि जितना भी ज़्यादा फ्लूइड जो होता है, मतलब जितना ज़्यादा आपका पर्टिकुलर बॉडी होगा वो इमर्स्ड होगा पानी में या डिस्प्लेस करेगा पानी को,
ठीक है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, वो उतना ही अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पानी से, ठीक है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना उसने एरिया लिया है उतना ही वो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। ओके, relative density. Now what is relative density? Relative density is your density of a substance by density of water. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जब भी हम पानी रखे होते हैं उसके ऊपर हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल क्या होता है, ऑयल फ्लोट करता है, राइट, ऑयल फ्लोट करता है और हमारा पानी नीचे रहता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दिखा है पिक्चर में 3 लेयर्स है, एक ऑयल है, एक वाटर है और एक हनी है। तो ऑयल जो है ऊपर फ्लोट कर रहा है, मिडिल लेयर में वाटर फ्लोट कर रहा है और उसके नीचे जो है हनी है, ठीक है, क्या है, हनी है। तो लास्ट लेयर इज योर हनी, मिडिल इज योर वाटर एंड अपर वन इज योर ऑयल। तो ये तीनों पोर्शंस हैं, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी में आपने देखा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एक पर्टिकुलर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस या रिलेटिव डेंसिटी उस चीज़ का हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी जो भी सब्सटेंस है उसका डेंसिटी बाय कितना वाटर का डेंसिटी है, अगर हम वो करते हैं तो उसके बाद हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, इट वाज अ स्मॉल सेशन, आई होप यू लाइक टुडेज सेशन, आई होप इट वॉज वर्थ इट। तो घर जाके इसको रिविजन करना, अच्छे से पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और टेक्सचुअल क्वेश्चंस करो। वन मोर लेसन, वन मोर लेक्चर विल बी देयर एंड आफ्टरवर्ड्स दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद हम आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, बट आई हैव टू रैप द सेशन वेरी अर्ली, so that's why I'm keeping the lectures very small and not that complicated. All right, so if you have any doubt regarding any of the portions of the chapter, let me know in the comment section below. और उसके साथ साथ अगर आप न्यू है चैनल में, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर वाचिंग द वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू मे गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक आउट द अदर वीडियोस, ओके। सो तो ये एक काम करना, इसमें जाके अच्छे से पढ़ाई करना। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से आप रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट दैट टफ, इट्स ईजी, सो होपिंग दैट, ठीक है। तो यही मैं होप करती हूँ, एंड हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज पढ़ी हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिया है या ऐसा कुछ भी है तो प्रीवियस लेक्चर्स को आप जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर आप इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देखोगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज को रिलेटेड ओवर हियर। सो फॉर दैट यू रियली नीड टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस, ओके। प्रीवियस वीडियोस आ चुके हैं इस चैप्टर के, उसको देख लेना, उसके बाद जाके इस वीडियो को देखना, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब बेसिक चीज़ें, बस फॉर्मूलाज एंड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट यू रियली नीड टू हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर सो दैट आगे कोई आपको दिक्कत ना हो। तो इसको वीडियो को देखने के बाद आप जाएं और जाकर अपना खुद का नोट्स बनाएं, अपना टेक्स्ट बुक रीड करें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। एंड उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो, ओके। With that hope, I'm signing off. I'll be seeing you next in the next session. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.